أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. Now my dear fellows and students and my friends, actually there are some loopholes which are present in the preparation of FCPS 1 examination, medicine and allied or surgical and allied and other examinations. Because the people want jump, people want shortcuts, people want the other sources in a short time to achieve this goal, to pass the FCPS Part 1 examination. If Part 1 examination is done, it means that you are eligible for the FCPS Part 2 examination. And where the people join, students join the specific supervisors. Just like me, I have been a supervisor previously, and they come to us for the training purpose, because we are doing the clinical work there. The clinical work attached with the basic knowledge. You have got a strong basic knowledge, you can definitely go through about the clinics are concerned. The clinical knowledge is all dependent on the basic knowledge. Basic knowledge is the one which you have actually obtained in the first professional MBBS, in studying the anatomy, the physiology, biochemistry, the pharmacology, and pathology. These are the most basic things you should understand. It means that you have cleared it. It means that you have done it. It means that you have understood it. The previously in your professional examination. When you are going in the FCPS Part 1 examination, you have to revise it definitely. The people are revising in different ways. One way is that you go for the modular type of studies, in which case you have to do, as a modular is concerned, for example, if you are doing for example, cardiovascular module, so you have to learn the muscular system, because muscular system is dependent of the cardiac muscle itself. What is the difference between the two? What are the types of the muscles in the body? How they differentiate from the cardiac muscles, etc. How they work, means the physiology is concerned. How they work, dependency, means biochemistry is on. And then afterwards you have to go to the what are the changes if some pharmaceutical agent is entered into the body. What will happen in pathology, or the disease process which is causing a problem there. Means the therapeutics will be applied here. What is the pharmacological intervention that is called. So biochemistry is also being applied here with the physiology, that is how they work. Means that some of the the metabolic pathways should be achieved in the activity. You should understand like this, and then you go for the specific diseases concerning with the cardiovascular system. If you'll go through like this, 1, 2, 3, 4, 5, 6, nobody in the world can touch you. Believe you me, it is possible that can anybody in the world object you that your knowledge is deficient in cardiovascular module, although it is according to the student it is difficult. No, it is the most easiest way to put it. I have not seen such an easy subject like cardiovascular system from very about 20 years back, 25 years back. I've been learning through and through and through. The easiest subject which you can understand, because of the high technology which we have used there, and their advances and recent advances and then recent advances, etc., make the cardiology interesting subject, manageable subject, and even eradications are possible. Means that you get rid of the disease
It's one of the beauty of the cardiology. Let's start with the general anatomy first. Because I'm telling you about the cardiovascular module, first you understand the muscular system. The muscular system means that muscles in the body. I am Professor S. Eliada. As you know that I am the facilitator of this tutorial, and I am the global honorary professor of medicine without any name, without fame, without economics. It is a free channel. Who can adopt this channel? The muscular system comprises, yes, that is the muscles, skeletal muscles, smooth muscles, and cardiac muscles. The muscles are responsible for all types of the body movement. They contract or shorten at one end to the other, and competitively are the machine of the body, because they are doing a work which can be done in a lesser amount of time is called machine. So in a lesser time you can achieve the goal of objective of your work, and that is called machine. Basic muscle types are found in the body: skeletal muscle, cardiac muscle, smooth muscles, the whole of the body. They are derived from the mesenchyme, they are derived from the myotomes specifically, as you know about it, as neurology is concerned. Now this is a skeletal muscle. You know that in the gymnasium they adopt to exercise aerobics and then other exercises to build the muscles. These are the different types of the muscles in the body, and definitely a higher proportion of has got a higher weight. A muscular person has got more weight than a person who has got fat. Remember this. And that is why if you go for the exercise program, first of all, after a few months, the weight will increase, because the body will build the muscles, and muscles are heavier than fat. Fat dissolves, but in place of the fat, the muscle forms. So in the first phase of the exercise, you will gain the weight, and the people definitely they concerned about the weight, and they said that we will not do the exercise again. That is, of course, a misnomer. Remember this point. They have got a higher, there are there is much better blood supply of these muscles. The mass is a bigger one, and they have got a more storage capacity than the fats are concerned. So this is the skeletal muscle. There is, sarcomere. This is the working unit of the muscles, and you see the sarcomere. This is a functional part of the muscle. As histology is concerned, functional histology is concerned. It got the nucleus, muscle fibers. This is the fiber. It is the nucleus of it, and striations are seen in this. These are the striations you see in the microscope. In the high power microscope, you see these striations in this skeletal muscle. What are these striations? See later on. The function of the muscle is written as the support of the body and allow for the movement by making the bones and other body parts move. They move and maintain the constant body temperature. This is another important function. So these are the functions of the muscle. Assist in the movement of the cardiovascular veins and lymph, because the veins, they are dependent on the contraction of the muscles. There are a lot of examples regarding this are concerned. Lower limbs are affected. The muscles are poor in action. There will edema will develop. The lymph also dependent on the muscular activity. If you are bedridden, there will be lymphedema possibility associated with the venous edema. Venous edema with the lymphedema. It is difficult to manage in those persons who are lying down for a prolonged period of time, and because of the stasis, there are chances of the phlebothrombosis, and the phlebothrombosis occurs means that the detachment will cause the pulmonary embolism. To protect internal organs and stabilize joints. Protective role on the chest, on the abdomen, elsewhere.
And they stabilize the joints because the movements they achieved is dependent upon the activity on the joints where the two of the skeletal, skeleton units are articulating. And this is a joint where the muscles are there. Muscle actions are there. Classification of the skeletal muscle, and these are the notes which are made by us at one time. And the classification of the muscle, morphological classifications, they are the muscles. I already said that they are stripped, or the voluntary muscles or skeletal muscles. They are voluntary. They are striped muscles. You see, if you open it, you see that it is striped in morphology. Striped or the plain, or they are involuntary muscles. They are smooth muscles. And third one are the cardiac muscles, which are not under your control, but they are striations again in these cases. They are very similar to this, but they are not in your control. And second feature is that the unit is not sarcomere here; it is syncytium of the heart, which is which causes the heart to contract and relax. And the skeletal muscle may be classified in two ways. Morphologically speaking, the classification according to the architecture, the fleshy fibers of the muscle may be disposed in various ways. Because the fleshy fibers are there, definitely. The parallel to the long axis of the muscle, fleshy fibers, or obliquely like the barbs of the feathers. Okay. And third one is they are radially like a fan, just like this. The fibers, this is the classification of fleshy fibers. Now, first of all, the parallel to the long axis of the muscle. The fibers parallel to long axis of the muscles. The fleshy fibers, there are two types, is written here. One is called the fleshy fibers parallelization, or you can say that they are running in parallel to each other, end to end, perhaps having a short tendon or the aponeurosis at one or both ends. This includes many strap-like and flat muscles in the body. For example, you have to exemplify it like sternocleidomastoid, and then you see the rhomboid, major, minor, rectus abdominis, gluteus maximus, and sartorius. This is one type of the parallel, in the long axis. Second parallelity can be seen as a fusiform. They have a tendon at one end or both ends, just like this, but they are fusiform in morphology, like the biceps brachii, like the flexor carpi radialis. They are fusiform in nature. They are fusiform. तो fusiform means that जो हम खेलते थे गिल्ली डंडा, तो गिल्ली नहीं होती है, इसको मारते थे, तो एक एंड से वो जो होता है वो होता है टेपर होता है, दूसरे एंड पर भी टेपर होता है, तो दोनों साइड पर टेंडन मौजूद होता है, दोनों साइड पर जो होता है हो सकता है एपनेरोसिस हो, डिपेंड्स। तो यहाँ पे जो है ना एक साइड पे होगी, यानी जहाँ पे मेन एक्शन है वहाँ पे तो होगा एपनेरोसिस। इसमें जो फ्लैशी फाइबर, इसमें जो है ना वो नहीं होता है, इसमें दोनों साइड पे होता है, और इसका फ्यूसिफॉर्म इन नेचर होता है, टेपरिंग होती है, फिर बल्क होता है, फिर टेपरिंग होती है, फ्यूसिफॉर्म, स्पिंडल, जस्ट लाइक। Now, fibers oblique to the long axis of the muscles. This is the second type, obliquely to the long axis of the muscles, and these resemble to the feather. These muscles are called, that is called pinnate, means feather, fleshy fibers corresponding to the barbs of the feather, and the tendons of the shaft, for they are all inserted by a tendon. They are mixed afterwards and form a tendon, and probably neurosis also. Types, unipennate, you see, here you see. The different type of the muscles you will see. The bipennate, unipennate, this is the one part is
attached here and it's going like this. It's unipennate. Bipennate both sides. Multipennate are seen like this. That is more of the feather like. This is just like this, just like here. And the circumpennate. Circum means the whole of the whole around it. It is circum. This is the circumpennate. Depending upon this unipennate, example are extensor digitorum longus, peroneus tertius. Bipennate example of the muscles is peroneus longus, flexor hallucis longus. The multipennate, they extend to the region like this. For example, multipennate is concerned like this. You see in the deltoid muscles fibers or subscapularis muscles, upper limb. And circumpennate, the whole of this, is just like this. When fibers coverage to on tendon which extend in their substance. Fiber coverage on tendon which extend into the substance of the tibialis anterior is a good example of circumpennate. So there is, see the quadrilateral muscle, strap-like muscles, and the tendon insertions are seen here. Fusiform, the digastric muscle example, or the both ends are there. In this case, this is the fusiform. And the tight cuspid muscles, like for example, this again there are tendons on here it is tapering, fusiform. And triangular muscles, cruciate muscles, unipennate muscles, and bipennate muscles, and circumpennate muscles, multipennate muscles, radial type of structure, spiral type of the structures. These are morphological, the shapes they adopt. And according to the shape, the function will be related. Remember this. Now here is the second one is the radial or triangular or the fan shape type of the muscles. The fleshy fibers converge from the wide origin of the base to an apex, creates a rough line or ridge on the bone. For example, the pectoralis minor or adductor longus or temporalis or gluteus medius. It is radial type, triangular or fan shaped type. Now, here the influences of the architecture of the muscle on these actions. Okay, these are the morphology. Now, how in nature design it? Why? The parallel type has long fibers and they can lift a light weight through a long distance. You can carry it on, for example, 5 kilogram, 7 kilogram weight. You can hold it for a long distance. The oblique type has short fibers and they are very numerous, so they can lift a heavy weight for a short distance. In bodybuilding, you कहते हैं इसमें the oblique type short fibers they are activated because the short distance करना होता है, उन्हें ऊपर वजन उठाना होता है, तो उनको नहीं ये काम के मसल्स हैं. एक मजदूर जो है ना वो ईंट लेके जा रहा है लॉन्ग डिस्टेंस को, ज़ाहिर उसको उठा के पहुँचानी है, तो वहाँ पे क्या होगा, तो वहाँ पे ये आर्किटेक्चर काम आएगा. पैरेलल फाइबर्स जो है ना वो फाइबर्स आपको जो पहले बताए हैं लॉन्ग बोन पे अटैच हैं. मिसाल के तौर पे जो है पीछे जो है वो सेमीटेंडनोसिस है, सेमीमेनोसिस वगैरह वगैरह. इसी तरीके से यहाँ पे अपर लिम्स में भी जो मसल्स हैं जिनको आपने पढ़ा ट्राइसेप्स वगैरह. As bipennate takes origin from the two lines as well as from the surface between these lines, so it is many times more powerful, double power हो जाएगी than a unipennate muscle. और इसमें जो है ना वो अफराद जो कि गेम खेलते हैं जैसे बॉक्सिंग है और मार्शल आर्ट है, उनके लिए ये बाइपेनेट मसल बड़े काम आते हैं. सिमिलरली मल्टीपेनेट एंड सर्कमपेनेट मसल स्टिल मोर पावरफुल. ये सबसे ज़्यादा पावरफुल जो हैं. अगर इसकी आप पेनेटी को बढ़ा दें, मल्टीपेनेट सर्कमपेनेट कर देंगे और पावरफुल हो जाएंगे. इसी को वो डेवलप करते हैं एक्सरसाइज से.
जो मार्शल आर्ट करते हैं, जो बॉक्सिंग वगैरह इस तरह के जो गेम्स खेलते हैं। लेकिन जो दूसरे लोग हैं जो कि रनर हैं, शॉर्ट डिस्टेंस के रनर हैं या लॉन्ग डिस्टेंस के रनर हैं, तो फिर उसमें ये वाले फाइबर्स काम आएंगे, ये फाइबर्स नहीं आएंगे, ये फाइबर्स काम आएंगे। क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द मसल एक्शन, इसको बड़ा इम्पोर्टेंट है, ये ख्याल कीजिएगा कि प्राइम मूवर्स और अगोनिस्ट दे आर द कॉम्बिनेशन ऑफ वन और मोर मसल्स हैं विद एक्टिव बाय एक्टिव कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस द डिजायर्ड इफेक्ट। फिर इसके मुकाबले में एंटागोनिस्ट याद रखिए, दीज मसल्स प्रोड्यूस मूवमेंट्स अपोजिट टू द प्राइम मूवर्स और अगोनिस्ट बाय एक्टिव रिलैक्सेशन, ये रिलैक्स होंगे तो ये एक्शन में आएगा, एंड मेक द act smooth and regulated that would otherwise have been jerky and spasmodic। अगर ये नहीं रेगुलेट करेंगे तो आपका एक्शन जर्की हो जाएगा, स्पास्मोडिक हो जाएगा। या तो आपने देखा होगा कि उन लोगों में जिनके अंदर जो है लोअर मोटर न्यूरॉन डैमेज हो जाता है, तो फिर ये मसल पैरालाइज हो जाते हैं और फिर फाइब्रोसिस डेवलप होना शुरू हो जाता है, स्टिफ हो जाते हैं। फिर वो इतने स्टिफ हो जाते हैं कि उनको आप निकाल नहीं सकते किसी तरह से, इतने ज़्यादा हो जाते हैं। या फिर ये है कि अगर वो कभी कॉन्ट्रैक्शन में आता है, कभी रिलैक्सेशन में आता है, लेकिन इसके साथ जो है ना वो स्मूथली कंबाइंड कॉम्बिनेशन नहीं दे रहा, तो फिर क्या होगा कि ट्रमर्स डेवलप हो जाएंगे। ट्रमर्स भी जो होते हैं फाइन ट्रमर्स होते हैं, फिजियोलॉजिकल ट्रमर्स होते हैं, इसके अलावा कोर्स ट्रमर्स होते हैं, इसके अलावा पोजिशनल ट्रमर्स होते हैं। जितने ट्रमर्स हैं ये मतलब ये एक स्पेशलिटी है, ये अलग छोड़ दें आप। उसका असल मसला यही होता है कि प्राइम मूवर्स ऑर्गेनिस्ट और एंटागोनिस्ट के दरमियान मुकाबला जारी होता है। ये एक्ट करना चाहता है, ये इसे रिलैक्स नहीं करना चाहता, या ये एक्ट करना चाहता है, वो रिलैक्स नहीं होना चाहता। Imbalance between the prime mover and antagonist muscle produce the involuntary movements। ये है कॉन्सेप्ट इसका। अब इसको मजीद सपोर्ट करने में सैनर्जिस्ट हैं। सैनर्जिस्ट आधा मसल होते हैं किसी ज्वाइंट के ऊपर जो एक्शन दे रहा है, वो प्राइम मूवर दे रहा है, उसको सपोर्ट करने के लिए दूसरे मसल जो इर्द गिर्द के हैं वो सैनर्जिस्ट कहलाते हैं। और एक जो और भी मसल की टाइप है, इन्हीं क्लासिफिकेशन फिक्सेटर है अकॉर्डिंग टू द मूवमेंट। वो क्या करते हैं कि वो फिक्स करते हैं, जब तक कि फिक्स नहीं हो जाए, नी जॉइंट है ये तो फिक्स नहीं होगा अपनी जगह पे। तो चारों तरफ से जो मसल्स हैं आपने देखा होगा, जो टेंडन नी जॉइंट पे राइट पे है, लेफ्ट पे यानी मीडियल है, लेटरल वगैरह, वो उसको स्टेबलाइज करेगा तो फिर क्वाड्रिसेप्स फीमोरस एक्ट करेगा। अदरवाइज स्टेबलाइज ही नहीं होगा तो वो नहीं कर सकता। इसी तरह से ये जो होते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात आ जाती है फिक्सेटर की। जिन लोगों में ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, वो अपना काम जो ज़िंदगी गुजारते हैं, फिक्सेटर अगर उनके ना होते तो वो चल ही नहीं सकते थे। वो फिक्सेटर जो होते हैं वो एक्शन में रहते हैं, थोड़ा थोड़ा वो मूव करते हैं, पेनफुल मूवमेंट होती है लेकिन हो जाती है। अब ये देखें ना, एप्लीकेशन देखें इसकी, आप यहाँ पे जो पूरी क्लिनिकल एप्लीकेशन है इसकी। A muscle may act as prime mover, antagonist, synergist, or fixator under different circumstances, under different works। Type of the work क्या है, अब एग्जाम्पलीफाइड करें इसको। When the arm is raised from the side, अब इसमें multipennate portion of the deltoid muscle acts as a prime mover, and gravity acts as an antagonist है। जो भी ग्रेविटी है जो वो तो नेगेटिव हो जाता है, तो जो भी मसल जो है लटके हुए होते हैं वो तो ग्रेविटेटेड मसल होते हैं, वो एंटागोनिस्ट हो जाते हैं, वो रिलैक्स हो जाते हैं। एंटीरियर पोस्टीरियर लॉन्ग फाइबर्स ऑफ द डेल्टॉइड, एंटीरियर पोस्टीरियर लॉन्ग फाइबर ऑफ द डेल्टॉइड एक्ट एज सैनर्जिस्ट। उसके जो फाइबर पीछे वाले एंटीरियर पोस्टीरियर हैं, लॉन्ग फाइबर्स हैं, वो जो है सैनर्जिस्ट हैं, उसको सपोर्ट कर रहे होते हैं। यानी मेन तो प्राइम मूवर उसका वो है मल्टीपेनेट पोर्शन, लेकिन जो दूसरे जो पीछे वाले जो मल्टीपेनेट नहीं है, पीछे वाले वो जो होते हैं वो उसको सपोर्टिव देते हैं, सैनर्जिस्ट। अब इसके पास होता है ट्रेपीजियस मसल और सेरेटस एंटीरियर मसल, वो फिक्सेटर है शोल्डर जॉइंट पे, वो फिक्स रखता है तो ये एक्ट करेगा ये, वरना तो जाहिर है कि एक जॉइंट ये जो आपका डिस्लोकेशन होता है ऐसे नहीं होता है कि आपका फिक्सेटर जो होता है वो काम नहीं करता, तो वो जब झटका लगता है, आपको कोई चीज़ लगती है तो वो फेल हो जाता है उसको फिक्स करने में, और जिस तरह से जॉइंट डिस्लोकेट हो जाता है, सबलेक्सेशन हो जाता है। When the arm is lower down, अब इसको उल्टा कर दें, एक्ट्स एज अ प्राइम मूवर, ग्रेविटी अब इसमें यानी वो जो थे
जो हमारे पास एंटागनिस्ट थे, अब वो काम आएंगे यहाँ पे, उल्टा हो जाएगा एक्शन, प्राइम मूवर हो जाएंगे वो, और डेल्टॉइड जो होएगा वो एंटागनिस्ट हो जाएगा। अगर इसके मुकाबले में बिल्कुल हाथ को झाड़े नीचे की तरफ तो उल्टा हो जाएगा एक्शन। अब दूसरा एग्जाम्पल, इफ द हैंड इज प्रेस्ड डाउनवर्ड्स ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर हाथ रखें और जोर से नीचे दबाएं, द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर फोल्ड ऑफ द एक्सिला बिकम टॉट, अभी टाइट हो जाएंगी ये। तो एंटीरियर फोल्ड किससे बनती है, पोस्टीरियर फोल्ड किससे बनती है, इसको देखिए, क्योंकि पेक्टोरल्स में जो एंटीरियर में और लैटिस में जो है पोस्टीरियर है, ये दोनों मसल्स आपको ये नज़र आते हैं एक्सेलर के अंदर, जो इसकी वॉल एंटीरियर वॉल और पोस्टीरियर वॉल वो टॉट हो जाएंगे एंड कम इन टू प्ले एज अ प्राइम मूवर। प्राइम मूवर इसमें जो है, और डेल्टॉइड मसल इसके अंदर जो है, ये दो मसल जो हैं ये प्राइम मूवर हो जाएंगे, और डेल्टॉइड मसल जो था वो जो है वो रिलैक्स हो जाएगा, यानी वो एंटागनिस्ट हो जाएगा। When hand, अब एक और एग्जाम्पल देखें, when hand and forearm is laid down on the table, टेबल के ऊपर आपने अपना हाथ और फोर आर्म को रखा और थम को एबडक्ट किया, then thumb abducted, the abductor pollicis longus, इसमें एबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गेस्ट एक्ट में आएगा, एबडक्ट करेगा जब आपने उसको उठाने की कोशिश की, एबडक्ट किया, as well as flexor and extensor carpi ulnaris becomes taut, ये भी इसके साथ एक्ट करेंगे, अकेला एक्ट नहीं कर सकता, तो इन्हें सनर्जिस्ट हैं, वो सनर्जिस्ट हैं द टू। अब इसके बाद अल्ना मसल एक्ट सनर्जिस्ट एंड फिक्स द वर्क ज्वाइन, ये फिक्सेटर के तौर पे भी काम करेगा और सनर्जिस्टिक के तौर पे भी काम करेगा। अब देखिए इसकी एप्लीकेशन अगर मैं शुरू करूँ हेड टू फुट तो बहुत सारी बन जाएंगी, बहुत सारी बन जाएंगी। और वो लोग जिसके एक्सपर्ट होते हैं ना मसल्स को ग्रो करने में, ये करने में, फिजियोथेरेपी, उनको ये पढ़ाया जाता है सब्जेक्ट, कौन सा मसल जो है ना वो प्राइम मूवर है, कौन सा एंटागनिस्ट है, कौन सा सनर्जिस्ट है, कौन सा फिक्सेटर है, उसकी बेस के ऊपर वो फिजियोथेरेपी वो कराते हैं, उनकी नॉलेज होती है, ज़ाहिर है इसको बढ़ाना उनके लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन हमको भी ये आना चाहिए ये तो ना, तो हम तो कैसे करेंगे। अब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मसल्स जो हैं वो मसल बैली होती है जो आपको नज़र आती है, उसको अगर मज़ीद करे दें, फेसिकल आपको बंडल्स नज़र आते हैं, फिर उसको करे दें और डीपली स्टडी करें तो उसमें आपको फाइबर्स नज़र आएंगे, जो मसल सेल होता है उसका जो फंक्शनल यूनिट है, सार्कोमेयर है, यूनिट्स ऑफ मायो, इसमें मायोफाइब्रिल्स होते हैं जो मज़ीद, यानी अगर फाइबर को आप देखें लाइट माइक्रोस्कोप से तो रिस्पॉन्सिव स्ट्रेटेड अपेयरेंस आपको नजर आएगी, स्ट्रेशंस नजर आएंगे, क्योंकि मायोफाइब्रिल्स स्ट्रेट होते हैं बिल्कुल, स्ट्राइशंस। अब इसको करे दें सार्कोमेयर के दो एक यूनिट को अच्छी तरह अलग निकाल के देखें, उसमें आपको मायोफाइब्रिल्स नजर आएंगी, स्ट्रक्चर दैट मेक अ मसल फाइबर, ये बिल्कुल आपको नजर आएंगी, अलग 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 मायोफाइब्रिल्स नजर आएंगी। अगर उसको आप तोड़ें तो मायोफिलामेंट आपको नजर आएंगी, इसके अंदर प्रोटीन्स हैं, वो प्रोटीन जो है अहम तरीन है जो कि एक्शन देते हैं, प्रोटीन है फिलामेंट्स दैट मेक अप सार्कोमेयर, ये फंक्शनल यूनिट इसी तरह से बना गया, सार्कोमेयर बनाया इसी ने, और इसमें दो प्रोटीन है, मायोसिन है, एक्टिन है। मायोसिन थिक फिलामेंट है याद रखिए, और एक्टिन थिन फिलामेंट्स हैं मॉर्फोलॉजिकली। तो मायोसिन और एक्टिन का जो एक्शन है उसकी बेस के ऊपर कॉन्ट्रैक्शन है और रिलैक्सेशन है, वो भी आपको पता है, तो नई बात तो नहीं है। अब इन्होंने जो ना इसको अलग अलग इसी चीज़ को निकाल दिया, बंडल ऑफ मसल फाइबर्स, फेसिकल को अलग किया तो मसल फाइबर सेल नज़र आए, यहाँ न्यूक्लिया आपको नज़र आ रहे हैं, सार्कोमेयर इसका यूनिट है, एक यूनिट को निकाल लीजिए, उसको अगर करे दें तो मायोफाइब्रिल्स हैं, उसको अगर अंडर माइक्रोस्कोप देखें तो वो जो एक्टिन और मायोसिन है इसके अंदर मौजूद है, उसको उसका जो क्रॉस ओवर ब्रिजेस हैं उससे जेड लाइन है, एम लाइन है, एच जोन्स हैं, ये सारे बनते हैं, रिलैक्सेशन में इस तरह नज़र आते हैं और कॉन्ट्रैक्शन में इस तरह नज़र आते हैं। कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो शॉर्ट हो गया, ये पार्ट शॉर्ट होकर इस तरह से नज़र आएगा, तो असल बात ये नहीं थी, ये लाइंस लिखी इन्होंने, जेड लाइन है, एम लाइन है, एच जोन है, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की स्टडी है जिसने ये क्लियर किया बात को, और बायोकेमिस्ट्री ने ये क्लियर किया कि एक्टिन एक प्रोटीन है और मायोसिन एक प्रोटीन है, जिसकी वजह से ये एक्शन हुआ है दरअसल। उसके बाद अब ये देखें, एक मसल है, एक टिपिकल इन्होंने निकाला है एक मसल, फॉर एग्जांपल, और हम लोअर लोन के मसल अगर समझ लें कि
ये मसल जो हमने निकाला है सेमी मेम्ब्रेनस मसल है। उसकी बैली आपको नज़र आ रही है, फेशिया इसके ऊपर लगा हुआ होता है, मसल अंदर होता है। मसल के ऊपर जो है फशा है, जो सुपरफिशियल फैशा होता है, फिर डीप फैशा होता है। फिर मसल को जब इसको निकाल के, अगर आपने देखा हो गोश्त वाला निकाला तो एपीमीजियम होता है, पतली झिल्ली होती है बहुत छोटी सी। तो एपीमीजियम और पेरीमीजियम, पेरीमीजियम जो होता है जब इसको काटता है वो अंदर, तो वो आपको नज़र आते हैं यहाँ पे जो बंडल्स हैं, यानी फंक्शनल यूनिट सार्कोमेयर वाला, वो यहाँ पे आपको उसके चारों तरफ ये जो मेम्ब्रेन है इसको पेरीमीजियम कहते हैं। ये फेसिकल, ज़ाहिर है फेसिकल्स जो है ना वो तो एक यूनिट, यानी पूरा फेसिकल आपने बाहर निकाल लिया और उसमें आप देखने की कोशिश की कि क्या होता है। तो इसमें आपको मालूम चला कि इसके अंदर आर्टरी, वेन, ये सारी चीज़ें सप्लाई है, उसकी ब्रांचेज आ रही हैं जिसको न्यूरोवास्कुलर बंडल कहते हैं, जिसमें न्यूरॉन खास एक्सॉन जो है ना वो इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप में आपको नज़र आएगा, जो कि जगह जगह टर्मिनेट हो रहा होगा, फिर आगे चल रहा होगा, टर्मिनेट हो रहा होगा, यानी साइनेप्स बना रहा होगा। तो न्यूरो वास्कुलर बंडल जो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पैरेलल होता है इसके, और ज़ाहिर है मेन चीज़ है वो सार्कोमेयर का न्यूक्लियस है, न्यूक्लियाई है राधा। फिर सार्कोप्लाज्म का अपना रेटिकुलम है, और रेटिकुलम जो होता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यानी वो प्रोटीन्स जो हैं ये बॉडी में बिल्ट होंगे, तो जिसको बहुत शदीद ज़रूरत है, मायोसिन है, एक्टिन है और दूसरी जो चीज़ें हैं वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोवाइड करेगा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से अगर देखें। और फिर अगर इसको मज़ीद देखने की कोशिश करें तो फिर आपको मायोफिब्रिल, इसको अलग निकाल लें, उसको तोड़ लें, तो इसके अंदर आपको मायोफिब्रिल छोटे 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 ये आपको नज़र आ रहे हैं मायोफिब्रिल्स। मायोफिब्रिल्स को अगर मज़ीद झटकें तो आपको ये फिलामेंट्स नज़र आएंगे, ये फिलामेंट्स है, ये फिलामेंट्स है। तो इसका जो स्ट्रक्चर है सार्कोमेयर का वो ये है कि फेसिकल है इसका, सार्कोमेयर इसका यूनिट है, उसमें मायोफिब्रिल्स होते हैं। मायोफिब्रिल्स को जो है वो हम मज़ीद कुरे देंगे तो माइक्रोफिलामेंट्स आ जाएंगे। उनको स्टडी करने की कोशिश करें तो वहाँ पे जो है ना वो एंड हो जाएगी बात कि इनका जो है वो रोल ओवर जो है एक्टिन और मायोसिन का कॉन्ट्रैक्शन से वो एक एक्शन या मस प्रोड्यूस करता है। कवरिंग्स जो है ना उन्होंने बता दी थी, पहले भी मैंने बता दिया था कि ये क्या है। एपिमीजियम इसके बाहर होती है, पेरीमीजियम इसके अंदर, जो आपने अभी भी देखी है कि मायो जो यूनिट था उसके अंदर। फिर फेसिकल के अंदर भी पेरीमीजियम होती है, फेसिकल को निकाल के आप चाहें तो यहाँ पे भी आपको मिलेगी। फिर इसके दरमियान जो चीज़ जो होती है, यानी दो इसके दरमियान मसल फाइबर के दरमियान, दैट इज़ नोन एज द एंडोमीसियम, ये दूसरे को इसको अलग करती है, ये इसको अलग करती है। आप एक मसल फाइबर को अलग कॉन्ट्रैक्ट करवा सकते हैं, अगर आप स्टिमुलेट करेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो इसकी अपनी नर्व सप्लाई है, नर्व फिब्रिल जिसे कहते हैं। अगर आप पूरे को ऐड कराना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर याद रखिए एंडोमीसियम ने इसको रोका हुआ है। ऐसा नहीं हो कि डिस्चार्ज हो जाए, पूरा डिप्लोराइज हो जाए। अगर आपको पूरा डिप्लोराइज करना है तो हो जाएगा, पूरा एक्शन लेना है, पार्शियल एक्शन लेना है, मिनिमल एक्शन लेना है, वो सब हो सकता है। बस ये टेंडन है, इंसर्जन हो गया इसका बोन के ऊपर। They contain muscle fiber, nerves and blood vessels, coverings, layer of the fibrous tissue that separate muscle from each other and from the skin. And largest to the smallest एपिमीजियम सबसे बाहर है, फिर पेरीमीजियम सराउंड द बंडल ऑफ मसल्स, मस्तिष्क को फिर उसके अंदर घुसे और उसको देखा तो देखा कि सराउंड सिंगल मसल फाइबर को जो करती है कवरिंग, वो एंडोमीसियम करती है। अटैचमेंट्स जो है ना, एपिमीजियम जो ऊपर था, ग्लैंड्स इन द कनेक्टिव टिश्यू, जो कनेक्टिव टिश्यू अराउंड है उसमें अटैच हो जाता है। वो जो होता है वो मॉडिफाइड हो जाता है, ज़्यादा इसके अंदर जो होता है वो आ जाता है कनेक्टिव टिश्यू, उसको टेंडन कहते हैं, कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर, टेंडेनियस हो जाता है वो जब एंड हो रहा होता है उसका। साइड से द मसल अटैचमेंट बोन्स पे, कार्टिलेज पे, कनेक्टिव टिश्यू कवरिंग कहीं पे भी हो सकती है। माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी ऑफ द मसल फाइबर, मसल सेल में सेल्स आर मल्टी न्यूक्लिएटेड है। डेफिनेटली सार्कोमेयर को आप निकालेंगे तो मल्टी न्यूक्लिएटेड है वो। न्यूक्लिया जस्ट बीनीथ द मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन के पास ही होते हैं।
और उसी के ऊपर जो है ना इन्होंने डार्क बैंड, ए बैंड, लाइट आई बैंड के साथ ये रखा हुआ है। देखें यहाँ पे अगर आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से उसको देखेंगे तो यहाँ पे ये डार्क बैंड जो नज़र आया था उसमें आपको पहले, और लाइट बैंड ये वाला है, यहाँ से चमकता हुआ आपको नजर आएगा। सेगमेंट ऑफ द मसल, इस सेल का जो पार्ट है, सार्कोमेयर का पार्ट है जो आपको दिखाया जा रहा है, सार्कोलेमा, दैट इज कॉल्ड फंक्शनल यूनिट। सार्कोलेमा के बारे में फिर इसके एक मसल मायोफाइब्रिल को उन्होंने ले लिया है, और माइक्रोफाइब्रिल को लेके, यानी आप मज़ीद स्टडी करना चाहें, स्पेशलाइज्ड मसल प्लाज्मा मेम्ब्रेन सार्कोलेमा, स्पेशलाइज्ड स्मूथ एंडोमोलास्टिक रेटिकुलम इन्वॉल्व इन मसल कॉन्ट्रैक्शन, एंड दैट इज़ वाई ये एक्टिन जो है वो थिन फिलामेंट बनाती है, और मायोसिन जो है थिक फिलामेंट बनाती है। ये थिन फिलामेंट है और थिक फिलामेंट है, और इसी के डिपेंडेंट में ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में ये आई बैंड, ए बैंड, फिर आई बैंड, फिर एम बैंड, इसका यूनिट इस तरह से बन जाता है। फिर इसके अंदर जेड डिस्क, अगर आप इसको देखें डिस्क, अगर आप डिस्क के तौर पर लेते हैं तो जेड डिस्क नजर आएगी, इसमें एच जोन इन्होंने अपनी क्लासिफिकेशन की हुई है, और जेड डिस्क असल में ये रोलिंग है इनकी आपस में। मायोफिब्रिल जो है, जब वो एक दूसरे के साथ क्रॉस ओवर होते हैं, यानी कॉन्ट्रैक्शन होता है जैसे आप कहते हैं, तो फिर ये जोन या रिलैक्सेशन में ये जोन नजर आते हैं, क्योंकि एक चीज़ ऊपर मास रखें, एक नीचे बास रखें, और दोनों को आप ऊपर नीचे करें तो आपको मुख्तलिफ़ किस्म की जो है ना वो पिक्चर्स नज़र आएंगी। उन्हीं पिक्चर्स को इन्होंने नाम रख दिया, आई बैंड है, ए बैंड है, आई बैंड है, फिर एम लाइन इन्होंने कर दिया। ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी। तो मायोफिब्रिल और फिब्रिल ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनेल कंपोज ऑफ बंडल ऑफ मायोफिलामेंट्स। ये मायोफिब्रिल के अपने कंपोनेंट जो है मायोफिलामेंट्स हैं, ये एन यूनिट है इसका। तो मायोफिब्रिल बंडल ऑफ मायोफिलामेंट्स हैं, एंड मायोफिब्रिल अगर खुद ले लें are aligned to give distinct bands. Light band are formed and dark band are formed. The light band is equal to I band के जो इसमें नज़र आता है, और डार्क बैंड जो आपको बाहर नज़र आ रहा था लाइट माइक्रोस्कोप पे, डार्क बैंड जो था वो ए बैंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे नज़र आता है। तो इन बैंड से कुछ नहीं होता, मतलब ये कि यार फंक्शन तो वो तो जो है वो मैंने बता दिया। अब मायोसिन फिलामेंट जो है ना, ये देखिए बिल्कुल स्पर्मेटोजोआ की तरह, जो ये स्पायरली टेल है इसकी, ये घूम रही है इस तरह, ये हेड इसका एक ये है, एक ये है। ये मायोसिन मॉलिक्यूल है जो अभी आपको दिखाया जा रहा है। तो ये मायोसिन मॉलिक्यूल का हेड होता है और टेल होता है। और उसके बाद जो है वो जब मायोसिन और एक्टिन की बात आप करेंगे तो एक्टिन जो जी एक्टिन इसके पोर्शंस हैं, ये इसको अलग किया गया है जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिकली इसका जो है वो एनालिसिस की गई है। तो इसमें ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स है और ट्रोपोमायोसिन है, ये ट्रोपोमायोसिन है, ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स है जो उन्होंने डिटेक्ट किया है इसके अंदर अभी तक। तो ये थिन फिलामेंट्स की ये मायोसिन है, और ये थिन फिलामेंट में एक्टिन का मॉलिक्यूल है। तो सार्कोमियर में कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट ऑफ द मसल फाइबर है, ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सार्कोमियर थिक फिलामेंट्स आर ऑलवेज मायोसिन प्रोटीन, ठीक है ना। अब इसके बाद थिन फिलामेंट्स की बात करेंगे तो फिर वो नीचे आपको मिलेगा, दैट इज मायोसिन एंड एक्टिन ओवरलैप्स somewhat in the sarcomere. Myosin filaments have heads होते हैं इसमें, एक्सटेंशन दैट कैन ग्रैब ऑन टू द एक्टिन को पकड़ लेती है, जस्ट लाइक जैसे चिमटा होता है, फॉर्मिंग अ क्रॉस ब्रिज। अब क्रॉस ब्रिजिंग की वजह से ये सारे थिक फिलामेंट और बायोजोन और थिन फिलामेंट्स ये आपको नजर आएंगे एक सार्कोमियर में। अब ये देखिएगा, इसको आपने और अगर डिटेल में एकदम देखना हो तो आप देख सकते हैं, इसमें वो सारी चीज़ें रिपीट की गई हैं जो मैंने अभी बता दी। इसको थोड़ा सा याद रखने की ज़रूरत है, बहुत डिटेल में अगर आप जाएंगे तो उसकी ज़रूरत नहीं है, कि उससे हम फंक्शनल अपनी नॉलेज को नहीं बढ़ा सकते। हाँ ठीक है, मॉर्फोलॉजी के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें पता चल जाएंगी, लेकिन उसका एक्शन तो वही रहेगा, कॉन्ट्रैक्शन है, रिलैक्सेशन है, और तो कुछ भी नहीं है।
फिजियोलॉजी ऑफ द मसल कॉन्ट्रैक्शन ये है कि स्केलेटल मसल मस्ट बी स्टिमुलेटेड बाय नर्व मोटर न्यूरॉन टू कॉन्ट्रैक्ट डेफिनेटली। और यहाँ पे देखिएगा कि इसने जो है ना वो एक सेंसरी रूट होता है, एक इसका मोटर रूट होता है, ये नर्व में फिर आगे जाता है, डिवाइड होता है, मजीद डिवाइड होता है, आखिरकार ये मसल के अंदर आपको दायरे मसल की नर्व सप्लाई आनी चाहिए, वहाँ पे डिवाइड हो के ये अंदर दाखिल होता है, एक्सॉन्स बनाता है ये। और हर सार्कोमेयर का अपना अपना नर्व यूनिट है, मोटर न्यूरॉन, तो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। अब ये जो है ना ये जाता है और वहाँ पे सिनेप्स बनाता है, दैट इज कॉल्ड न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, और वहाँ पे जो है नर्व रिलीजेस न्यूरो ट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन। ये एसिटाइलकोलिन जो होती है, याद रखिए कि सिर्फ स्केलेटल मसल्स के लिए मौजूद है, लेकिन स्मूथ मसल में ऐसा नहीं होता और कार्डियक मसल में ऐसा नहीं होता। सिनेप्टिक वेसिकल्स कंटेनिंग एसिटाइलकोलिन, यहाँ पे इसकी बहुत डीप स्टडी अगर की तो उन्हें ये पता चला कि यहाँ पे जो है ना सिनेप्सिस हुआ, ये आया, इसके अंदर बहुत सारी डिटेल स्टडी है। और उसकी स्टडी इस तरह से है कि एक्सोनल टर्मिनल ऑफ द मोटर न्यूरॉन है, टर्मिनल है, इसमें माइटोकॉन्ड्रियास हैं जो कि इसे एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। फिर क्लेफ्ट है, सिनेप्टिक क्लेफ्ट है इसमें। फिर इन्वेजिनेशन आपको नजर आएंगे, सार्कोलेमा और मोटर एंटेड, ये असल में वो जगह है जहाँ पे इसके अंदर ये एडमिक्स्ड हो गया है। और ये नीचे जो है जहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन देना है वो पार्ट ऑफ द मायोफिब्रिल है। यहाँ भी एक्टिविटी कैसे जनरेट करती है, क्या करती है। स्टेप 2 में आए तो न्यूरो ट्रांसमीटर कॉजेज द मसल सेल मेम्ब्रेन गेट्स टू ओपन, यहाँ मेम्ब्रेन गेट्स टू ओपन। 1 तो ये था कि वो जाके उसने सिग्नल दे दिया, ठीक है, स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 ये है न्यूरो ट्रांसमीटर जो आपने रिलीज किया एसिटाइलकोलिन मसल मेम्ब्रेन का, तो उसने काम किया गेट्स टू ओपन। ये गेट्स जो है ना, ये कौन सा गेट है और कहाँ से आ गया, यहाँ पे जो है ना इस पार्ट को स्टेप 2 के ऊपर यहाँ रोक दिया जाएगा। इसको क्लियर करें पहले इस बात को, और फॉर एवर क्लियर करना होगा। तो यहाँ मैं इस ट्यूटोरियल को रोक देता हूँ क्योंकि ये गेट्स की बात आ गई है, अब यहाँ रुक जाएंगे। पहले गेट्स को पहले क्लियर करें तो फिर आगे चलें। लेकिन एक चीज़ समझ में अच्छी तरह आएगी तो फिर आगे जाएंगे ना। अगर ये आदत डाल ली आपने तो फिर आपको कोई भी छेड़ नहीं सकता। तो मैं इसको नेक्स्ट ट्यूटोरियल पे ले जाता हूँ और नेक्स्ट ट्यूटोरियल पे ले जाके गेट्स के बारे में बातचीत करेंगे। फिर इसको फिर वापस यहीं से दोहराएं आप, तो फिर आपकी समझ में आ जाएगा, पावरफुली समझ में आएगा, ऐसा दिमाग में चिपक जाएगा, वो निकलेगा नहीं। तो चलिए यहाँ रोक देते हैं इसको। वमा अलैना इल्लल बलाग, यहाँ तक की स्टडी जो की गई है इसको आपने समझ ली होगी। इसके ऊपर अगर BCQ बनते हैं तो हम आपको दे देंगे, वो आप अटैम्प्ट कर लीजिए। उसी में से ज़ाहिर बात है इस ट्यूटोरियल में से जो BCQ निकलते हैं वो इंशाअल्लाह ताला हम देंगे आपको उसमें से, और वो आप हल कर लेंगे बहुत आसानी से इंशाअल्लाह। वमा अलैना इल्लल बलाग।